Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 10 properties of triangles. And today's part is part 12. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 11, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts. So what will happen, it will be helpful for you, your concept will be much more clearer and stronger, and it will be helpful for you to solve these sums more easily. And today we are going to solve the workout section. Okay, now let us see what they have told us in this workout portion. Okay, so workout first question is choose the correct option. So we have to choose the correct option. Now choose the correct option means only it is called MCQ. Okay, so it is known as MCQ. Let me take another one. This color, blue color is not so much, so green is now little bit dark. Okay, so what it is, choose the correct option. MCQ, that means multiple choice questions. So first question, identify the odd one out. You have to find out the odd one. Okay, now first option is isosceles, second is equilateral, third is scalene, and the fourth is obtuse. So if you see nicely, isosceles means two sides are equal, equilateral means three sides are equal, scaling means not a single side is equal, all the three sides are different. So this and this, they are what? You are classifying the triangles on the basis of the sides, on the basis of sides. But fourth one you see, obtuse, clear? No. So if it is obtuse, so this is only the odd one. Obtuse means what? Obtuse angle or obtuse triangle, clear? No. So obtuse means more than 90 but less than 180. So this is only the odd one. So the answer will be Roman 4, clear? No. Now second one, number B. If the three angles of a triangle are equal, all the three angles are equal, the measure of each angle is, that means if I want to draw, if I want to do one graph, suppose three angles. So this angle and this angle, all the three angles are equal. So if all the three angles are equal, total angle is how much? 180 degree. Then the measure of each angle, so हर एक एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है? तो तीन ठो एंगल है, टोटल है 3 और 180 डिग्री. सो डिवाइड कर दो 3 से, 3 1s are 3, 3 6s are 18 and then 0. So how much comes? 60 डिग्री. तो हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. सो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 और ये भी 60 होगा. तो ऑप्शन कौन सा है? तुम लोग अच्छा से देखो. तो 45 नहीं, 30 नहीं, 60. हाँ, सो आ गया, यही है आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ नंबर सी, if one of the angles of an isosceles triangle is 40 degree, the measure of other two base angles. So isosceles triangle क्या होता है? जिसका दोनों साइड, दो साइड इक्वल होता है. तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल है 40 डिग्री और हमको निकालना है द मेजर्स ऑफ अदर टू बेस एंगल्स. बेस एंगल्स मतलब ये एंगल, ये है बेस, ठीक है, और ये भी है बेस. बेस एंगल कितना है, ठीक है, और एक एंगल बोल दिया है, एक एंगल मतलब ये वाला एंगल बोल दिया है 40 डिग्री, ठीक है. तो 40 डिग्री अगर बोल दिया है तो बेस एंगल देखो, ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है. तो आइसोसेलेस में क्या है? बोथ द साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल एंड they are opposite angles. So this side opposite angle is this one. If I give the name A, B, C, then AB side opposite angle is angle C and AC side opposite angle is angle B. So they are equal. That means
दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सो हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो टोटल एंगल अगर 180 है, वहां से तुम 40 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो 140 डिग्री इज द मेजरमेंट ऑफ बोथ द एंगल्स। सो हर एक एंगल कितना होगा 140, ये दो ठो एंगल मिलाकर 140, तो एक ठो कितना होगा, इसको कर दो 2 7 14, सो कितना होगा 70 डिग्री। मतलब ये 70 है और ये भी 70 डिग्री है, 70 70 है। तो इधर में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वन ओनली, सी 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, ठीक है। और अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा और अच्छा से कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको रब करके देखो, ऐसा करके भी तुम कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी और एंगल सी के जगह में हम एंगल बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल वाई सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी ट्वाइस दो ठो एंगल बी हो गया, ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 40 उधर जाएगा तो -40 डिग्री, ठीक है। तो ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी होगा 140, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। तो 2 इंटू हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सो एंगल बी आ गया 2, सो एंगल बी कितना आ गया 70 डिग्री। सी 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 0 आ गया, सो एंगल बी आ गया 70। और एंगल बी और एंगल सी सेम है, so therefore एंगल B is equal to एंगल C equal to 70 डिग्री। तो हर एक एंगल 70 70। तो आ गया हम लोग का ऑप्शन 1, रोमन 1। अभी देखते हैं नंबर डी। सो नंबर डी करने के लिए इसको फिर से रफ करता हूं, क्योंकि इधर में मैं रफ करूंगा इसलिए मैंने ये जगह खाली रखा है। सो विच ऑफ द गिवन, देखो क्या बोला, विच ऑफ द गिवन 3 लाइन सेगमेंट्स कैन फॉर्म ए ट्राइंगल। तो 3 ठो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये 3 ठो लाइन सेगमेंट एक तो ट्राइंगल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा से देखो, ये 3 4 8 5 6 12 3 4 5 2 3 9। तो हम लोगों ने पाइथागोरस ट्रिपलेट सीखा है, तो क्या होगा, तो उधर में क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 साइड्स। तो ये वाला देखो 3 4 5, तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो रहा है 3 स्क्वायर कितना है 9, 4 स्क्वायर कितना है 16, तो कितना आ गया 25। और थर्ड साइड जो है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थर्ड साइड क्या है 5 स्क्वायर, तो क्या हो गया 25। तो इधर में देखो, ये रोमन 1 ये रोमन 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसा सम हम लोगों ने किया है, रोमन 1 and 2 वी गेट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में कर रहा हूं, ओके, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो मैच हो रहा है किससे, रोमन 3 से। सो रोमन 3 आ गया हम लोगों का आंसर। ऐसा हम लोगों ने एक तो क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो पहले पार्ट में तुम देख सकते हो, ठीक है। सो यही हो गया हम लोगों का आंसर, रोमन 3, ठीक है। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1E। सो लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग। इफ इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, चलो इसका रफ वर्क करते हैं। नंबर E का राइट एंगल ट्राइंगल, सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और क्या बोला है, बेस 4 मीटर एंड परपेंडिकुलर 3 मीटर। सो परपेंडिकुलर और बेस है कितना बोला है 4 मीटर, ये है बेस 4 मीटर, परपेंडिकुलर है 3 मीटर, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सो तुमको ये निकालना है, तो इसको ABC लिख देंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस बोल दिया है 4 मीटर, परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर बोल दिया 3 मीटर, और तुमको हाइपो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का,
तुम लोगों ने सीखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओनली हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और बेस कितना है 4, तो 3 स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 स्क्वायर कितना आ गया 16, तो हो गया 25, 25 मतलब 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 मतलब सिर्फ 1 5 आएगा, दोनों में से एक तो 5 आएगा, और मीटर। तो आ गया हम लोग का आंसर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 मीटर। तो हम लोग इधर में देखेंगे ऑप्शन 1, कैन यू सी और नो। सो ये वाला पेन काम नहीं कर रहा है, तो ये है 5 मीटर। So Roman 1 is the answer. Now next one, identify the Pythagorean triplet from the following. तो Pythagorean triplet तुमको निकालना है। तो एक तो तुम लोगों ने पहले से ही सीखा है 3, 4 और 5, और अभी देखो 5, 6, 7 ये है, 3, 4, 5, 3, 4, 6 नॉट 5, 3, 4, 6 है, 8, 9, 10 है ना, 6, 8, 10 है। तो मेरा ख्याल से यहां पे तुम लोगों ने एक तो सम किया है, तो 6, 8, 10 वही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब यही है आंसर 6, 8, 10। कैसे हम लोग करते हैं, नंबर एफ, ठीक है, एफ का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट 2 साइड्स, ओके, स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 2 साइड्स। तो पहला साइड क्या है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, तो आ गया हम लोग का 100। और थर्ड साइड स्क्वायर करने से 10 स्क्वायर करने से वो भी आ जाएगा 100। सो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, ठीक है, ये सब नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। सो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो आंसर क्या है, रोमन 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। सो एक तो ट्राइंगल है, कोई भी एक तो ट्राइंगल ले लो। तो मैं एक तो ट्राइंगल ले लेता हूं, ठीक है, ये एक तो मैंने ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, जिसका हर एक साइड डिफरेंट है, मीन्स नॉट सेम, और मैं नाम दे दिया ABC, ये नाम देना चाहिए, ठीक है। DEF भी तुम कर सकते हो। ए लाइन सेगमेंट मतलब एक तो लाइन जो ज्वाइनिंग हो रहा है एनी वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स। चलो मैं वर्टेक्स A ले रहा हूं, ठीक है, कौन सा वर्टेक्स, वर्टेक्स A, ओके, एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। तो यहां से लाइन शुरू होगा, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, BC है, तो BC का कहां पे ज्वाइन हो रहा है, मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो सपोज इसको मैं D दे रहा हूं, तो लाइन इधर से इतना तक ज्वाइन हो रहा है, तो यहां से शुरू हो रहा है और इधर में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये लाइन को देन द लाइन सेगमेंट इज नोन एज व्हाट, ऑल्टीट्यूड, ना मीडियन, ना हाइपोटेन्यूज, ना नन ऑफ दिस। मैंने सिखाया है तुम लोगों को, जब भी एक तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, कहां से, ना वर्टेक्स से, ऑन द ऑपोजिट साइड, एंड ऑपोजिट साइड कहां पे, मिडिल पॉइंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। तो यहां पे आंसर कौन सा होगा, मीडियन, ठीक है। ऑल्टीट्यूड नहीं होगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड व्हेन इट सपोज ऐसा है ट्राइंगल, तो ऑल्टीट्यूड मिडिल पॉइंट में नहीं होता, ऑल्टीट्यूड ऐसा करके सीधा होकर गिरता है, और जब गिरेगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री, तो ये हो गया ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट में नहीं होता, नाम अगर देने से ABC, ये D, तो ये ऑल्टीट्यूड हो गया, मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट। ऑल्टीट्यूड का और क्या क्या नाम है, हाइट है, और क्या नाम है तुम्हारा, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये ऑल्टीट्यूड व हाइट व परपेंडिकुलर नहीं है, ये इसका नाम क्या है, जो मिडिल पॉइंट में टच होता है तो उसको बोलते हैं मीडियन। अगर यही डायग्राम में मैं अगर मीडियन ड्रॉ करूंगा, तो पहले मुझे मिड पॉइंट निकाल लेना है, ये है मिड पॉइंट, तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। तो यही क्या है, ये क्या है, यही है मीडियन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियन। समझ में आ गया होगा।
Now let us see this one. The sum of the lengths of any two sides, okay, of a triangle is always dash than the third side. मतलब तीन तो साइड दिया हुआ है, तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. सपोज हम लोगों ने एक तो सम किया था, ठीक है, हम लोगों ने एक तो सम किया था जिसका, और मैं दूसरा सम का बारे में छोड़ देता हूं, मैंने यही सम लेता हूं. सपोज ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट. इसका क्या है मेजरमेंट? फर्स्ट साइड 6, देन 8, देन 10. तो क्या बोल रहा है? सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ फर्स्ट टू साइड्स. सो फर्स्ट टू साइड्स ये है, तो इसका कितना होगा? 6 प्लस 8. ओके, तो 6 प्लस 8, और ये क्या है? लास्ट साइड क्या है? 10. तो 6 प्लस 8 कितना हो रहा है? 6 प्लस 8 14 हो रहा है. 6 प्लस 8 क्या हो रहा है? 14. तो 14, दिस 14 एंड दिस 10, 14 इज व्हाट? ग्रेटर देन. ठीक है, 14 इज ग्रेटर देन 10. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे आंसर होगा ग्रेटर. ओके, ग्रेटर देन द थर्ड साइड. दो साइड का एडिशन करने से वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो आई होप क्वेश्चन नंबर ई, एफ, जी और एच तुम लोगों ने अच्छा से समझ लिया होगा. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the last MCQ of this question number 1. Now let us see what they are telling in question number I, okay, of question number 1. So if the two interior opposite angles of a triangle are in the ratio 4:5 and the exterior angle of the triangle is 108 degree, then the measure of two interior opposite angles are. मतलब इधर में ट्राइंगल दिया है और एक्सटीरियर एंगल भी दिया है. तो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. चलो, एक तो ट्राइंगल हो गया. ठीक है, ये एक तो ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और एक्सटीरियर एंगल करने के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, डी तक. तो ये आ गया हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल कितना बोला है? एक्सटीरियर एंगल बोल दिया है 108 डिग्री. ठीक है, और अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट, ठीक है, तो ऑपोजिट टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन सा होगा? ये वाला होगा और ये वाला होगा. ठीक है, ये वाला नहीं होगा. ठीक है, मैंने तुम लोगों को सिखाया है. और ये क्या रेशियो में है? 4:5. मतलब एक तो होगा अगर 4x तो, और एक तो होगा 5x. तो हम लोग कैसे करेंगे? लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x एंड एंगल B इक्वल टू 5x. नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है ना? सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मतलब एंगल A प्लस एंगल B. ओके, सम मींस एडिशन. सम ऑफ टू, ओके, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल का क्या है इधर में? एंगल ACD. तो ये कितना है? ये है 4x, और ये कितना है? ये है 5x. और एंगल ACD कितना है? बोल ही दिया है क्वेश्चन में, 108 डिग्री. सी, 108 डिग्री. तो 4x प्लस 5x कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू 108 डिग्री. तो x कितना होगा? 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 9. इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 1s are 9 here, 9 1s are 9, 1 extra, so 10. So now it is 18. 18 means 9 2s are 18. तो आ गया x का वैल्यू 12 डिग्री. तो जैसे ही x का वैल्यू 12 डिग्री आ गया, अभी हम लोग इधर में करेंगे. ठीक है,
x का वैल्यू जैसे ही 12 डिग्री आ गया तो एंगल a कितना होगा, एंगल a होगा, मैंने 4x पकड़ा है, मतलब 4x मतलब 4 इंटू 12 डिग्री, तो कितना हो गया 48 डिग्री। और एंगल b कितना होगा 5x, तो 5 इंटू 12 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एक तो एंगल है 48 डिग्री, एक तो एंगल है 60 डिग्री। तो कौन सा, फर्स्ट वन मैचिंग 40 डिग्री, इट इज नॉट मैचिंग। सेकेंड वन 48 एंड 60, देखो मैच हो गया। हाँ, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, रोमन 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to solve question number 1i. okay, तो from a b c d ऐसा करके जितना भी MCQ है सबसे अच्छा MCQ ये नंबर i लास्ट वन ही है, इसलिए मैंने इसका रफ वर्क दिखाया। मगर रफ वर्क भी मैंने थोड़ा शॉर्टकट में किया है क्योंकि ये MCQ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है कि let ABC be a triangle in which BC is produced to D such that angle ACD equal to 108 डिग्री। ये सब नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये MCQ है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि एंगल A को 4x और एंगल B को 5x, और ये दोनों एंगल मिलाकर क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। और इधर में ब्रैकेट से हम लोग क्या लिखते हैं, जब अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो हम लोग इधर में लिखते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटीरियर OR एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ऐसा करके मैंने तुम लोगों को सिखाया है पहले का पार्ट में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द MCQs. So practice these MCQs again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।